paper, and at the same time, your idea for providing guidance to people who are looking forward to clear NET exam in commerce, because that's your core subject. So I'm really happy that you have come up with this idea, and I won't be surprised if, as a result of this, in the next NET exam, many participants of this particular program will will clear the net with flying colors. So I won't be surprised with that result. I really wish you all the best, and request you to take full advantage of this opportunity which Dr. Vakil has provided you. And I would wish all the best to Vakil sir. And thank you for having me here. Thank you. Thank you very much. That was Dr. Sachin Surve, sir. Thank you very much, sir. Sir, let me clarify that there is no fees of joining this club. There is no political motto or any objective. The objective is clearly the objective is you can unmute, sir, if you want to speak, because I have kept you on mute. If you wish to speak, you can please unmute and speak. The objective is purely academic, and yes, yes, please, sir. You can continue, sir. No, no, no. I'm just saying you have already clarified that, and I'm really happy for that. Yes, yes. Yeah? Thank you very much. And one thing, sir, if we have qualified and we have experience of 15 plus or 14 plus, so we should become a source of what we say motivation and guide people. I think, sir, the objective is not to teach people. The objective is to guide people. So we have made a WhatsApp channel wherein we will be sharing notes, material, and we will guide people how to use AI. And there will be online weekly session on each Saturday. The timing will be 9:30 to 10. We don't want too long sessions. We want to teach people that in 30 minutes we can guide that people will be able to study the whole week. We will give homework, we will give assignment, we will be having interactive session. We'll invite other people also, because I think I will not be the only sufficient person to be successful. So we'll have people like you, as we invited today. We'll have invited resource persons, and we'll ask them to guide. So sir, thank you very much for joining, and I'll be just start my session, because the objective is not to introduce Dr. Vakil, but to just guide that I'm Dr. Sayyed Vakil. I did my schooling from Suez Urdu School, Dhule. And sir, I was not selected in scholarship batch when I was in 4th or 8th standard, because I was not among top 10 students. But in 2022 I became the first student of my school to get PhD, and the management principal came at my house and they felicitated me along with my parents. And I was you know uh, in newspaper, Urdu Inqilab, Urdu Times, and a national hero for that week. So it doesn't matter uh, what was your past. You can start. It doesn't matter your medium also. I did my schooling from Urdu medium. Many students are from Marathi medium. So I think vernacular medium students, first they face the problem of English language. So I request all the participants to kindly improve your English. Sir, this is my second club. I have already started Dr. Vakil's English club on Sundays. The timing is same, the link is also same. You don't need to find any other link, where we teach English grammar, communication, and there is club. So there is also no fees, no registration, no formality. Sir, sir, we learned from you that as a teacher, like a musician is he's engaged in having music, singer is busy in his singing song, choreographer is busy in dancing. Sir, as a educator, as an educator, sir, we should also keep ourselves busy, and we should guide people, sir. Sir, my as a I'm working as assistant professor in Pune College, research guide, SPPU, in commerce administration. So that is my statutory job, sir. So other than my college domain, sir, as an educator,
I should guide people. So the objective is clear, and I will just say that I did my junior college from Jain Junior College, Dhule, BCom ZB Patil College, then MCom SSVPS College, Dhule. Sir, I stood first in MCom, first in the college, because I never thought that I should come. Sir, I think the success starts with thinking. All people, all participants, from today you should think that we will definitely qualify UGC NET set exam. So the first step of success is your thinking. You start thinking and you plan and then execute. These are very simple steps for qualifying any kind of examinations. So uh, in 2007, after my graduation, I joined CA course. Still, sir, I am not CA, I am CA final student, and I am pursuing CA final. So maybe next 1 or 2 year, inshallah, I will qualify that exam also, because people want me to qualify. Only thing is remaining in my life, that is CA final. I have achieved all things what I thought, what I have planned, and sir, I learned a lot under CA KU Nabria sir. He is my teacher, and he taught me accountancy, practical auditing, and CA course taught me how to study. The syllabus is very vast. Sir, we learned there mind mapping, mnemonics, edutainment, what is group study, and sir, I could not qualify my CA intermediate in first attempt. I qualified UGC, I qualified CA intermediate, that is at that time it was known as PCC, first group in my second attempt, and I could not pass in next 5 attempts my second group. In Pune, I came in 2011, I joined Aryan College, and then I qualified my CA intermediate second group. So I studied income tax, costing more than 5, 6, 7 times. And sir, I qualified UGC NET because of studying CA studies. So at that time there were 3 papers, paper 1, paper 2. These were objectives, and paper 3 it was सब्जेक्टिव पेपर, रिटर्न पेपर. तो सर उस वक्त पेपर 3 जो हुआ करता था, अभी बंद हो गया, वो इन राइटिंग हुआ करता था. 2.5 आवर्स का टाइम था, और सर 14 सब्जेक्ट थे तकरीबन. कॉमर्स के 14 सब्जेक्ट थे, 200 मार्क था. क्वेश्चन पेपर में आंसर पेपर मिला हुआ होता था, उसमें आपको लिखना पड़ता था, जगह छुट्टी होती थी. और मुझे लोगों ने चैलेंज किया कि वकील तू पास नहीं होगा. मैंने बोला क्यों नहीं होगा भाई? बोले आप उर्दू मीडियम के. मैंने बोला भाई उर्दू मीडियम के तो मेरी गलती क्या? और बोले कि आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, आप इतना नहीं लिख पाएंगे. मैंने बोला भाई मैं तो अभी एग्ज़ाम दिया भी नहीं, और आप कैसे बोलते मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा? आई थिंक वो मुझे मोटिवेट किया. जितने लोगों ने मुझे बोले कि तू नहीं कर सकता, मुझे उतना एनर्जी मिला. और सर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट नेट क्वालिफाई नहीं किया, 6 मार्क्स से मैं फेल हो गया. और सेकंड अटैम्प्ट जब मैंने दिया तो मैंने बोला कि 6 मार्क्स कम नहीं, ज़्यादा आना चाहिए, छलांग और लंबी लगाना चाहिए, टारगेट पासिंग का नहीं करना चाहिए. कभी भी आप पास नहीं होंगे जब आप सिर्फ पासिंग का सोचेंगे. देन आई थॉट कि थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने 10 ऑल प्रीवियस 10 पेपर सर सॉल्व किया, एंड थोड़े से टिप्स लिया, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई CA कोर्स. तो मुझे लोग बोले कि आपको CA करना है तो नेट सेट क्यों कर रहे हैं? मतलब भाई मेरे को करना है, मेरा करियर. सर आई थिंक करियर काउंसलिंग इज़ अ फॉर्मेलिटी. एवरीबडी शुड नो मुझे क्या करना है और मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या स्किल है, मेरा शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए. करियर काउंसलिंग इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी. हमारा काउंसलिंग हमने खुद करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को हम खुद पहचानते, अपने आप को दूसरा कोई नहीं पहचानता. तो ट्राई टू नो योर सेल्फ. आई थिंक ये कामयाब बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है नो योर सेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस. और फिर अपने आप को एक बार पहचाने आपने, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता. तो UGC नेट क्लब शुरू करने का मकसद जो है, कोई प्रमोशन, पॉलिटिक्स, नो ओनली एकेडमिक्स है. इसमें सिर्फ और सिर्फ UGC नेट पेपर 1 के बारे में गाइडलाइन होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन. एंड पेपर 2 जो है वो सिर्फ, बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स, सो मैं कॉमर्स के बारे में गाइड करूँगा. बट आई विल टीच यू हाउ यू कैन स्टडी अदर सब्जेक्ट यूजिंग AI. तो हम छोटा सा उसका एक डेमो देखेंगे. आपको मैं स्क्रीन मेरा शेयर करता हूँ. सर आप प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं. आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन. I will just share my screen. Is it visible, sir? You can say
you can show your thumb. Is my screen visible? Okay, thank you very much sir. अभी मेरा स्क्रीन आप देख सकते। आप लोग यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन यूज को पायलट, यू कैन यूज परप्लेक्सिटी, यू कैन यूज डीप सीक। मैं 4 एआई को बहुत अच्छे से, 1 नंबर पे मैं परप्लेक्सिटी को देता हूँ, 2 नंबर पे मैं को पायलट को देता हूँ। तो आई विल यूज को पायलट। आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आपको को पायलट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल करना है। क्विक रिस्पॉन्स कट करके थिंक डीपर आपको ऑप्शन लेना है। और ये जो डीप सर्च होता है, ये इन डीप सर्च आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना है, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी अभी आप देख सकते हैं कि एक एआई कितना पावरफुल है, एक एआई क्या कर सकता। हमने बोला कि डॉक्टर वकील नेट क्लब एआई बेस्ड लर्निंग, तो हम एआई का यूज़ करना यहाँ पर सीखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एआई को पूछता हूँ आई वांट, इसमें इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आप। आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। मेक माई 50 days schedule, पेपर 1 जनरल एंड पेपर 2। आई विल जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कॉमर्स। आप अपना पेपर 2 ले सकते। पेपर 2 आपका जो भी है, यू कैन टेक लैंग्वेज बोलो या जो भी आपका है। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मैं एग्जांपल के लिए कॉमर्स ले रहा हूँ। देन रिकमेंड बुक्स, वेबसाइट्स। मैं इसको, आई एम आस्किंग एआई टू गाइड मी टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के मुझे 50 डेज़ का आप एक प्लान करके दो। टाइमिंग जो है वो मैं 10 AM से लेके 10 PM तक, यानी सुबह 10 बजे से लेके तो रात के 10 बजे तक के मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे एक टाइम टेबल आप बना के दो। देखो एआई क्या करता है, अपने को प्रॉम्प्टिंग करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई में सबसे मेन चीज़ प्रॉम्प्टिंग है। और जितने लोग बोल रहे हैं कि हम एआई का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को वो चीज़ से महरूम रख रहे। सो इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू लर्न स्मार्टली, देन यू मस्ट यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1 नंबर पे परप्लेक्सिटी है एंड 2 नंबर पे मेरे हिसाब से वो को पायलट है। तो मैं को पायलट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने बोला है कि भाई मुझे गाइड करो कि यूजीसी नेट का पेपर 1 जनरल और पेपर 2 कॉमर्स का मुझे स्टडी करना है, तो गाइड करो। उसको मैं बोलूँगा मैं माइंड मैपिंग, निमोनिक्स, ये आपको सीखना पड़ेगा। माइंड मैपिंग, निमोनिक्स क्या रहता है, मेमोरी टेक्निक से। एजुटेनमेंट, उसके बाद में गेम लर्निंग, उसके बाद में ग्रुप स्टडी, हाँ, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। बेबी ये पानी बह रहा, पानी पीने का आवाज आ रहा। बेबी you can see here previous paper solution। मैंने इसको ये प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑल द पार्टिसिपेंट। आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि यूजीसी नेट के लिए आपको 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। आप लोग सीबीएसई का वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे एटसेट्रा लिखता हूँ ताकि वो अपना शेड्यूल बनाने में, यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। नाउ अभी याद रखिए कि आपको यूजीसी नेट में 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 इज जनरल एंड पेपर 2 इज आपका स्पेशल पेपर। जो भी आपका स्पेशल 2 पेपर है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। कॉमर्स का कॉमर्स ही पेपर होता है, तो उसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो आपका पहला काम है सिलेबस का कॉपी एंड उपकार पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन या जो भी आपको अच्छा लगता तो आप वो पब्लिकेशन ले सकते।
अभी देखो मैंने इसको एआई को प्रॉम्प्ट दिया, आपका बेस्ट टीचर जो बनना चाहिए वो एआई बनना चाहिए और एआई की मदद से आपने सीखना चाहिए। सो एक 30 to 40 सेकंड्स लेता है and it gives you answer. I'm just waiting for the AI to give the response. So तकरीबन वो एक 30 सेकंड्स लेता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है, AI को यूज़ करना है टू मेक द थिंग्स बेटर। मेरी बात मैं नोट करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपको यूज़ करना है नॉट टू डू एवरीथिंग। आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है, बुक्स भी पढ़ना है, और आपको कोशिश करना है कि दिन में 30 मिनट्स आपने एआई से पढ़ना है। एक पीडीएफ है तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मेक इट शॉर्ट, उसका समरी बनाओ, ट्रांसलेट इन मराठी, हिंदी, उर्दू। आपको पेपर 1 तो कॉमन है, अगर आपका लैंग्वेज उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, सो एआई की मदद से आप लोग वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं फिर से ये कॉपी करता हूँ, आई विल जस्ट कॉपी इट। जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, आप लोग प्लीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। ये प्रॉम्प्ट है, अच्छा प्रॉम्प्ट है, इसका आप एग्जाम्पल के लिए एक देख सकते हैं। आई विल जस्ट, मैं एक नया प्रॉम्प्ट देता हूँ। डीप रिसर्च को टाइम लगता है, थिंक डीपर लेना है आपने, थिंक डीपर ऑप्शन लेना है। थिंक डीपर ऑप्शन लेने के बाद में इट टेक्स 30 सेकंड्स, और डीप रिसर्च को 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो वो पहला ऑप्शन मैंने 10 मिनट का लिया था, 10 मिनट अपने पास वक्त नहीं, अभी 30 सेकंड्स अपने पास, ठीक है। तो नंबर वन ये है कि आपके पास में, ये देखो ये आंसर आ गया उसका। नंबर 1 क्या है कि आपके पास में सिलेबस चाहिए और रेफरेंस बुक चाहिए, उपकार पब्लिकेशन, आर्यन पब्लिकेशन, या जो भी आपको ऑथर अच्छे लगते हैं। ये देखो इसने 50 डेज का एक कॉमर्स का मेरा बना के दिया, उसने रिकमेंडेड बुक्स दिया मुझे, ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2, ठीक है। अभी मैंने अरिहंत पब्लिकेशन बोला, उपकार पब्लिकेशन बोला, विकास, और बहुत सारे आपको पब्लिकेशंस मिलेंगे। आप पुणे में हैं तो आप यू कैन विजिट अप्पा साहेब बलवंत चौक, दैट इज एबीसी चौक, वहाँ पे आपको दुनिया भर के बुक्स मिलेंगे। बुक्स लेते वक्त आपको ये याद करना है कि प्रीवियस पेपर कौन से पब्लिकेशन में सॉल्व किया है, क्योंकि यूजीसी नेट करने के लिए आपको स्टडी करते वक्त प्रीवियस 10 to 20 पेपर्स लोग सॉल्व नहीं करते, इसके लिए मेरे हिसाब से लोग पास नहीं होते। आई पर्सनली फील कि लोगों ने पिछले प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए। अब देखो इसने शेड्यूल बना के मेरे को दिया, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, कि सुबह 10 बजे से आपने क्या पढ़ना चाहिए, कोर थ्योरी प्लस माइंड मैपिंग, उसके बाद में आप लंच करो, 5 o'clock को आप क्या करो ना, अल्टरनेट फोकस करो, 5:30 को ब्रेक लो आप, ठीक है। उसके बाद में 7 o'clock को एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करो, 7 to 8 ग्रुप स्टडी करो, ठीक है, क्विज कर सकते हैं आप। देन उसके बाद में 8 से 9 उसने बोला कि कुछ वीडियो लेसन लो आप, और 9 से 10 बजे आप लोग रैपिड रिवीजन वाया फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप कर सकते हैं। अभी उसने डे 1 से लेके डे 50 तक मुझे बना के दिया। आई विल जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप, यू डोंट वरी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं आपको ग्रुप में, जो मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप चैनल, आई विल शेयर देयर। इसने डे 1 से डे 10 तक के बिल्ड पेपर 1 फाउंडेशन बताया, उसने बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसने बोला कि डेली 30 एमसीक्यू आपने करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें डे 2 फेज 2 बताया है, उसमें 11 डेज से लेके 20 तक क्या करना चाहिए आपने, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई विल जस्ट, आगे मैं आपको बताऊंगा उसने फिर आगे क्या करना चाहिए। उसने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम वगैरह दिया, ठीक है, एचआरए में, इनकम टैक्स है, ठीक है। अगला फिर क्या करना चाहिए, लाइक दैट। तो 1 नंबर पे परप्लेक्सिटी, देन 2 नंबर पे को पायलट, देन डीप सीक और चैट जीपीटी। आई विल जस्ट स्टॉप माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर में कि आपके पास में यूजीसी नेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का एक टेक्स्ट बुक या कोई भी रेफरेंस बुक होना चाहिए, एंड यू शुड हैव पेपर सॉल्यूशन ऑफ 5 to 10 प्रीवियस एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 10 प्रीवियस पेपर। और आपने प्रीवियस पेपर कब सॉल्व करना है, व्हेन यू आर इन दी पीजी फर्स्ट ईयर। अभी इसमें कुछ बच्चे एमकॉम, एमएससी, एमए कर रहे हैं, तो पीजी फर्स्ट ईयर करते वक्त ही आपने नेट सेट का प्रिपरेशन करना चाहिए।
लोग बहुत बड़ी गलती करते कि आफ्टर देयर पीजी दे स्टार्ट स्टडीज, तो वो 2 साल पीछे रहते। लेकिन कोई बात नहीं, आपका पीजी हो गया। आफ्टर पीजी क्या करना चाहिए एंड बिफोर पीजी क्या करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ यू आर डूइंग पीजी, देन आपका पीजी के साथ साथ सी योर सिलेबस इज ऑल्सो इन एज अ पार्ट ऑफ यूजीसी नेट। तो आपने पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, देन प्रीवियस पेपर आपने बाद में पढ़ना चाहिए। तो जिसका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ, व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग, जिसका पीजी नहीं हुआ, जो लोग कर रहे हैं, वो पीजी के 2 साल के साथ साथ यूजीसी नेट सेट का एग्जाम करना है, और आपको दोनों के एग्जाम देने हैं, बिकॉज द सिलेबस इज सेम। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है, वो पेपर जो सिलेबस है वो सेम है, और सेट का सिलेबस भी सेम है। इसके लिए आपने यूजीसी नेट प्लस सेट दोनों के फॉर्म भरना है, दोनों के एग्जाम देना है। कुछ लोग ओनली नेट का एग्जाम देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यू शुड अपेयर इन बोथ दी एग्जाम्स, एनटीए का। दूसरी बात, अगर आपका पीजी हो गया तो क्या करना चाहिए? मेनी फैकल्टी मेंबर्स आर दे हैव जॉइन टुडे। जिसका पीजी कंप्लीट हुआ उसने क्या करना चाहिए? जिसका पीजी कंप्लीट हुआ उसने स्टडी पे फोकस करने के बजाय पेपर सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसका पीजी कंप्लीट हुआ, उन्होंने ऑलरेडी पीजी पढ़ ली है, उनका हो चुका है एमकॉम, एमए, एमएससी हो चुका है, एमएड हो चुका है, तो आपने क्या करना चाहिए कि आपने जीरो से शुरू ना करते हुए यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन पेपर सोल्यूशन। आपने लास्ट 20-30 पेपर्स आप कर सकते क्या, और आपने पेपर सॉल्व करते वक्त आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कॉमर्स के आप है तो स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं आ रहा, पेपर 1 के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा मैथ्स का पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो वीक पॉइंट आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले उसका जो वेबसाइट है सीबीएसई का, एनटीए का, वो वेबसाइट नोट करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, एंड यू मस्ट चेक द सिलेबस विथ योर बुक। आपने चेक करना है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उस पर लेटेस्ट सिलेबस है कि नहीं, कि ओल्ड सिलेबस है। आपने बुक खरीदने से पहले यू शुड हैव कॉपी ऑफ द सिलेबस। तो आज का पहला लेसन है, ऑल स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर ए फाइल containing the syllabus and previous paper। आप सब लोग 2 फाइल बनाना है स्टूडेंट्स ने। पहला फाइल आपका होना चाहिए यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें सिर्फ सिलेबस होना चाहिए, दूसरी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका यूजीसी नेट का जो दूसरा फाइल बनेगा, वो फाइल होना चाहिए प्रीवियस पेपर्स। पेपर 1 का अलग फाइल बनेगा एंड पेपर 2 का अलग फाइल बनेगा, दोनों को एक साथ मत बनाइए। और आपने कोशिश करना चाहिए कि डेली आपने पेपर 1 पेपर 2 डेली आपने पेपर सॉल्व करना चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों जो है आपने वो सॉल्व करना चाहिए। और एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम है, यू मस्ट डेली प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज। आप लोग गलती क्या करते कि आप लोग सिर्फ रीड करते और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछेंगे एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्यों कर रहा है, बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। तो आपने आपका जो ब्रेन है इसको आदत लगाना है डेली एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर मुझसे कोई पूछे आपको सीरियसली नेट सेट क्वालिफाई करना है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के स्टार्ट करना है 10 एमसीक्यूज से। पेपर 1 10 एमसीक्यू, पेपर 2 10 एमसीक्यू, ठीक है। देन उसको बढ़ाना है, 10 एमसीक्यू से स्टार्ट करने के बाद में 50 एमसीक्यू तक लेके जाना है, और आपका ब्रेन साथ देगा। देन आपने 60, 70, 80, 90 एंड 100। उसके बाद में एग्जाम से पहले आपने डेली 100 एमसीक्यू पढ़ना है। मतलब आपके ब्रेन को आदत लगाना है कि भाई रिस्पॉन्स टू 100 एमसीक्यूज, और आपने आपका टाइमिंग फिक्स करना है कि पेपर 1 कब पढ़ेंगे। जब पेपर 1 पढ़ेंगे तो पेपर 2 नहीं पढ़ना है। यू मस्ट प्रिपेयर ओनली पेपर 1। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 100 एमसीक्यू कर रहा हूँ, सो आई शुड स्टडी एट द बिगिनिंग पेपर 1 ओनली। नेक्स्ट डे मैंने पेपर 2 के 100 एमसीक्यू करना चाहिए, और आखिरी में जब मेरा सब पढ़ना होगा, रिवीजन होगा, एट दैट टाइम पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम कंडीशन में जैसे हम लोग बैठते हैं, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है। तो नंबर 1 स्टेप है, गो टू एनटीए वेबसाइट जो सीबीएसई नेट एग्जाम का है, डाउनलोड दी सिलेबस पेपर 1 पेपर 2, उसका प्रिंट आउट आपको आपके फाइल में लगाना है। आपको एक फाइल बनेगा सिलेबस का पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें दोनों सिलेबस आएगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा।
आपका आज का सबक है कि पेपर 2 के लिए दूसरा फाइल आपको बनाना है और उसके अंदर प्रीवियस 5 to 10 पेपर्स जितने भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आपको कम से कम 10 पेपर्स सॉल्व करना है, 10 पेपर्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल प्रीवियस पेपर 20-30, मेरे हिसाब से आप 30 द मोर यू सॉल्व पेपर्स द मोर आइडिया यू गेट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। क्या होता है देखो, नेट सेट एग्जाम में गाइडेंस नहीं ले सकते आप ज़्यादा किससे, नेट सेट एग्जाम में आप गाइडेंस नहीं ले सकते, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा पेपर। नेट सेट एग्जाम जो रहता, देखो एक बात याद रखो कि आपको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन रहे, सो आपको फर्स्ट चीज़ दिमाग में फिट करना है कि आई शुड बी गाइड ऑफ माई सेल्फ, आई शुड बी गाइड ऑफ माई सेल्फ। मैंने कोशिश करना चाहिए कि मैंने खुद मेरा गाइड बनना चाहिए और मैंने खुद कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। तो जितने भी टीचर्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पहले कोशिश करो कि यू शुड बी टीचर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को डिसिप्लिन लाओ, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, व्हेन यू आर गोइंग टू वेकअप, आपका स्केड्यूल बनाओ। अगर आप 1 घंटा भी रोज, 1 घंटा भी, इफ़ यू स्टडी 1 आवर डेली, बिलीव मी, consistency will definitely going to make you successful. So the objective of Dr. Vakil's UGC Net Club is not to teach but to guide people to prepare for the exam. So it is a platform wherein we are going to share you study material, study tips, and the people who have qualified UGC Net exam will request them, I'll also be there, no problem, but I will also request other people to join me and you can send me study material. I will just share the same on the platform. So you have to click on follow button. WhatsApp ग्रुप जो चैनल बना है उस पर जाके आपको फॉलो बटन पे क्लिक करना है, तभी आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन है अपना इनॉग्रल प्रोग्राम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इफ सर्वे सर इज़ देयर, और हमारे यहाँ पे अक्षय बाले सर भी। अक्षय बाले सर, इफ़ यू कैन अनम्यूट इफ़ यू आर देयर। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग वक्त का बहुत ख्याल रखेंगे। 9:30 to 10 रहेगा। अभी 4 मिनट, आज पहला दिन था तो हो गया ऊपर। अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टाइमिंग है उसको फॉलो करेंगे हम लोग, और वक्त से पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो एवरी सैटरडे 9:30 को रहेगा। द शेड्यूल इज़ फिक्स्ड, द शेड्यूल इज़ फिक्स्ड। अक्षय बाले सर, अगर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, इफ़ यू टुडेज फीडबैक यू कैन स्पीक इन हिंदी, मराठी। यस सर, यस सर। सर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज़ आपका, और आज का फीडबैक सर कैसा रहा आज का सेशन? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने खूब अच्छी तरह से हमें गाइडेंस कर दिया नए बच्चों के लिए। मेरे स्टाफ के भी कुछ बच्चे यहाँ पे या फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, और आपने जो स्ट्रेटजी दे दिया है, मुझे लगता है कि आपने जो प्लान किया है उसी हिसाब से तो डेफिनेटली आने वाले 50 दिन के अंदर ही बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके तरफ से तो मोटिवेशन मिला है, लेकिन वो मोटिवेशन अदर पार्टिसिपेट के लिए मैं बोलता हूँ, ये मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी नहीं है। इसमें अगर परमानेंट होना चाहे तो इसमें आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए स्टडी में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो हम कितने भी मोटिवेट करोगे आपको, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो मोटिवेशन भी ज़रूरी है, आपका हार्डवर्क भी ज़रूरी है, और उसमें कंटिन्यूटी भी होना ज़रूरी है। सिर्फ 1 दिन या 2 दिन में स्टडी करके कोई यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास नहीं होता, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम हमारे देश के टॉप 10 एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है। ओके, सो इसमें पास होने के लिए हमें मेहनत भी उसी तरफ से करना चाहिए, और हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत है। मोटिवेशन की तो यही है, लेकिन हमें गाइडेंस करके आप जो प्लान उन्होंने बनाया है उसी हिसाब से अगर हम स्टडी करते हैं, डेली 30-50 एमसीक्यू भी करते हैं, तो डेफिनेटली हम क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं भी खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं हर वक्त डेली सुबह 1 घंटा पेपर नंबर 1 के लिए 50 से 60 एमसीक्यू में डेली रीड करता था, और पेपर नंबर 2 के लिए शाम को 1 घंटा डेली देता था, उसके लिए भी 50 से लेकर
बाद में 100 तक एमसीक्यू में रीड करता था। अगर मन में कोई क्या बोलते हैं एक इच्छा शक्ति होती है तो हम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। ऐसे बोलते हैं कि 99% हार्डवर्क एंड 1% लक, सो दिस इज द सक्सेस। So सर I थँक think यू. that very thank you to all of the participant and also the one and all member यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे शामिल हो चुके हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे पहले सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। थँक यू सर. सर हमारे साथ में राठौड़ सर भी है. राठौड़ सर इफ यू कैन अनम्यूट. राठौड़ सर भी इन्वाइटेड आज सर है. सर थोडासा गाईड करा आम्हाला सर प्लीज. सर गुड इवनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर. व्हिडिओ ऑन कीजिए ना सर प्लीज. व्हिडिओ ऑन करा आणि थोडासा गाईड करा सर. सर आमचे हॅलो. पुटाचे मेंबर आहे, अध्यक्ष आहे. यस सर. राठौड सर आमचे पुटाचे अध्यक्ष आहे. प्लीज गाईड करा सर. हॅलो. हा सर बोला सर. बोला सर. सर आवाज येते? येतं. हॅलो, आवाज येते सर? येतंय सर. बोला सर. हा सर, पहिल्यांदा फर्स्ट आय वुड लाईक टू appreciate to you for your efforts and to contribute your knowledge. It's very good activity. I congratulate and appreciate to you sir. खूप चांगलं तुम्ही म्हणजे ही ऍक्टिव्हिटी घेताय, जे की विद्यार्थी बरेचसे सक्सेस होत नाही नेट सेट मध्ये. त्यांना प्रॉपरली स्टडी करतात, हे करतात, पण प्रॉपरली जो की सक्सेसची असते ती त्यांना मिळत नाही. ही आपल्या माध्यमातून डेफिनेटली त्यांना मिळणार आहे. तर हे खूप छान ऍक्टिव्हिटी आहे. याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी किंवा ज्यांना या फील्डमध्ये यायचं आहे, ते ज्यांना ह्या फील्डमध्ये येऊन नेट सेट करायचंय किंवा टीचिंग फील्डमध्ये सगळ्यात चांगलं जर काही असेल तर एज्युकेशन आणि एज्युकेशन अँड हेल्थ, या दोनच गोष्टी प्रोग्रेसच्या किंवा देशाच्या किंवा आपल्या फॅमिलीच्या किंवा सेल्फ जरी प्रोग्रेस असेल तर ह्या दोन गोष्टी आहेत. आणि ह्या एज्युकेशन फील्डमध्ये येऊन त्यांचं ज्ञान जर सोसायटीपर्यंत किंवा गरजूंना पुरवणाऱ्या याच्यापेक्षा दान मोठं दुसरं काही नसतं. आणि हे अतिशय चांगलं तुम्ही हे काम करतायत, याच्यासाठी माझ्या शुभेच्छा. आणि आपल्या संघटनेच्या वतीने पण तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही अतिशय चांगलं काम करताय. याच्यातून चांगले शिक्षक म्हणजे जे याच्यातून नेट सेट पास होतील ते या फील्डमध्ये येतील आणि त्यांनी पण सुद्धा तुमचं एक आदर्श घेऊन म्हणजे विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांचं ते अप्रोच अतिशय चांगलं नेतील. ही अतिशय चांगली ऍक्टिव्हिटी आहे. मला खूप आवडलं. तुमचं मेसेज आल्यानंतर मी बघत होतो, पण ते माझ्या लक्षात आलं नाही की तुम्ही ही लिंक पाठवलेली नाही. नंतर आपलं फोनवर बोलणं झालं. तर खूप चांगलं सर. इफ तुम्हाला याच्यामध्ये काही लागलं असेल तर आय विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट टू यू. ओके. अँड वन्स अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट. तुम्ही अतिशय चांगलं समाजासाठी आणि गरजूंसाठी तुम्ही अतिशय चांगलं काम करताय. वन्स अगेन व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेट्स टू यू अँड थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. राठोड सर आमचे पुटाचे अध्यक्ष आहे आणि सरांचा म्हणजे खूप आमचं मार्गदर्शन असतो. सर थोडासा असा होता की नेट सेट थोडासा 1-2% रिझल्ट येतो आणि लोकांना फक्त म्हणजे गायडन्स आपण केला तर भरपूर लोक ते म्हणजे दे आर मोर दे आर व्हेरी क्वालिफाईड अँड व्हेरी टॅलेंटेड बट दे नीड गायडन्स. आणि आपले सर पैसे घेऊन भरपूर लोक क्लास वगैरे घेतात आहे, पण आपल्याकडे गोरगरीब माणूस आहे किंवा खेड्यातले ते भरपूर त्यांच्याकडे पैसे नाही आहे म्हणजे पुण्याला किंवा मुंबईला यायला. आणि हा म्हणजे प्लॅटफॉर्म त्यांच्यासाठी घरी बसून तुम्ही शिका. आणि सर माझा जो शिक्षण आहे तो उर्दू माध्यमातून झालेला आहे सर. शाळा धुळे सुयस स्कूल. आणि आम्ही मराठी शिकलो. म्हणजे आमचे वडील बँकेत होते आणि त्यांनी लोकमत पेपर घरी लावला होता आणि म्हणजे मराठीचा पण आम्हाला फार म्हणजे मदत झाली. काही मटेरियल आम्ही मराठीमध्ये पण वाचन केला. आणि सर आमचा एक पहिला क्लब आम्ही सुरू केला उपक्रम. रविवारी आम्ही 9:30 वाजता लिंक सेम आहे. आम्ही डॉक्टर उकीस इंग्लिश क्लब सुरू केला आहे. तर लोकांना इंग्लिश स्पीकिंग एक प्रॉब्लेम असतो, आपले मराठी उर्दू जे व्हर्निक्युलर मीडियम आहे सर, त्यांच्यासाठी आम्ही मोफत ऑनलाईन उपक्रम सुरू ऑलरेडी केलेला आहे.
ओके. आणि दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये आम्ही 3 दिवसाचा स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री, म्हणजे कोणतेही फीस न घेता 9:30 ते 10:30 आम्ही एक 3 दिवसचा स्पेशल दिवाळीमध्ये सुट्टीमध्ये घेणार आहोत. हा. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आमचं लक्ष आहे की तुम्ही मराठी जसं बोलता इंग्रजी पण तुम्हाला बोलता यायला पाहिजे. आणि Yes. हा दुसरा उपक्रम आहे की UGC नेटसाठी काही विद्यार्थी आमचे, म्हणजे पुणा कॉलेजमध्ये मी शिकवत आहे सर, तर हा हा. आमचे काही स्टाफ आहे किंवा आमचे मित्र आहे मंडळी, त्यांचा आग्रह होता की तुम्ही नेटसेटसाठी काहीतरी गाईडलाईनसाठी काही सुरू करा. तर हा उपक्रम आम्ही आज आमचं उद्घाटन झालं. डॉक्टर सचिन सुर्वे कोऑर्डिनेटर HRDC SPPU सर, त्यांच्या हस्ते आणि आपल्या हस्ते उद्घाटन झालं. आपण इथे आलात आणि आम्हाला मार्गदर्शन केलं. अ, शनिवारी आम्ही नेटसेट पेपर 1चा म्हणजे गायडन्स घेणार आहे 9:30 ते 10, आणि रविवारी इंग्लिश क्लब यामध्ये आम्ही इंग्लिश बोलण्याचा इंग्लिश स्पोकन सुरू केलेला आहे. तर थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर जॉईनिंग. थँक्यू व्हेरी मच ऑल दी पार्टिसिपंट्स. फ्रॉम नेक्स्ट lecture the timing will be 9:30 to 10. Before 10 we will conclude. आज थोडासा आपला उद्घाटन होता म्हणून थोडासा वेळ, आणि संडेचा टायमिंग पण 9:30 इंग्लिशचा 9:30 ते 10, आणि लिंक पण सेम आहे. जी लिंक आहे ती लिंक पण सेम आहे. आणि नो फीस, नो पॉलिटिक्स, नो रजिस्ट्रेशन, नो फॉर्मॅलिटी. हा उपक्रम फक्त प्युअरली अकॅडमिक्स आहे. याच्यामध्ये आम्ही फक्त अकॅडमिक बद्दल, अभ्यास कसा करायचा, नोट्स तयार कसे करायचे आणि त्याबद्दल आम्ही बोलणार आहोत आणि त्याबद्दल आम्ही मार्गदर्शन करणार आहोत. सर थँक्यू व्हेरी मच, आपण आलात आणि वेळ दिला आम्हाला. मग आम्ही आपल्या मार्गदर्शनाखाली चांगला पुढे काहीतरी अजून करू. आणि सर पुटाच्या मार्गदर्शनाखाली एक कमीत कमी 100 लोक जास्त पास व्हायला पाहिजे प्रत्येक वर्षी. हा आमचा पहिलं टार्गेट आहे. तर होतील शुअर. खूप चांगलं, म्हणजे मनातून जे काही न घेता तुमची जी तळमळ आहे, राईट, आणि याच्यामधून लोकांना गेन झालं पाहिजे. तुम्ही म्हणलं की बरेचसे लोक क्लासेस घेतात, पण ते पास होण्याचा जो एक हे असतो की कशा पद्धतीनं त्याची तयारी करून पास होतील, ते अप्रोच होत नाही मुलांना, आणि ते तुमच्या माध्यमातून डेफिनेटली मिळेल असं मला वाटतं. आणि डेफिनेटली याचा फायदा होईल. आणि ही लिंक पण आम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू, जे की जॉईन करतील आणि त्यांना याच्यात डेफिनेटली फायदा होईल सर. आणि तुमचं खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही खूप चांगलं काम करताय शिक्षण क्षेत्रामध्ये, आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये आहात आणि शिक्षणासाठी काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन असावं, ही जी तुमची तळमळ आहे ही खरंच उल्लेखनीय आहे, म्हणजे अतिशय चांगली. आणि थँक्यू तुम्हाला थँक्यू व्हेरी शुभेच्छा मच. खूप खूप. आणि तुम्हाला काही लागलं तर आय विल ऑलवेज विथ यू. Okay, and anyway, we can share your link to the maximum students in Maharashtra. Okay, all the districts and everywhere our friend circle is in each districts. I can share the link, and they will get the definitely benefits, and they will success in their life. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल दी पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट सैटरडे को नेट का 9:30 टाइम रहेगा 9:30 को, और संडे को इंग्लिश क्लब का लिंक इज सेम. थैंक यू वेरी मच. हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे. पेपर 1 के बारे में, नेट का UGC नेट का सिलेबस के बारे में सर डिस्कस तुमचा आवाज करेंगे. म्यूट झालाय. Hello. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. एवरी सैटरडे 9:30 to 10. नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, UGC नेट का सिलेबस कैसा रहता, और हमारा जो क्लब का मकसद है वो टीचिंग नहीं है, गाइडेंस है. हम आपको गाइड करेंगे कि अभ्यास कैसा करना है, पढ़ाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है. तो और जो व्हाट्सअप चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है. उस पर हम स्टडी मटेरियल बहुत सारा आपको देने वाले हैं. आपको एक्टिविटी डेली बेसिस पे 2 दिन में 3 दिन में जैसा मुझे वक्त मिलेगा वैसा मैं शेयर करता हूँ. और एक चीज़ फिक्स है कि हमारे तरफ से 1 रुपये आपसे फीस आज भी और फ्यूचर में कभी नहीं मांगेंगे आपसे. ये हमारा आपके से प्रॉमिस है. नो फीस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फॉर्मेलिटी. आप सिर्फ वक्त दीजिए आपका, हम आपको गाइड करेंगे. और मैं सर बेसिकली धुलिया से हूँ, जलगांव भी मैं जाते रहता हूँ, तो मैं जब भी आऊँगा तो मैं पोस्ट करूँगा. आप मुझे सिटी में भी पर्सनली, पूना में भी मिल सकते अपॉइंटमेंट लेके, और हम आपको गाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सैटरडे को 9:30 को मिलेंगे नेट के लिए, और संडे को इंग्लिश क्लब सेम लिंक 9:30 को रहता है. थैंक यू वेरी मच. हम लोग नेक्स्ट इसमें मिलते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.
Thank you very much, all the participants. Here we end the program.